गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम काली प्रसाद जी। सर कि आज भूमिका करिवे सर आज आम गयाधर जी सर कहबे तो गयाधर जी पंडा Shall I तो start? ना सर पंडा वेलकम नमस्कार। कोई तो नहीं, आप कृपया शुरू करिए, गुरुजी तो जुड़ गए हैं। Thank you, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्ण Krishna, पंडा। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. My respectful congratulations to the assembly of listeners of the sacred Shastra. Also respectful
salutation to the venerable acharyas who have been elucidating the nectarine episodes of the Bhagavatam Delhi. I also felicitate Arvind Avanindraji for his noble assistance he has been rendering to the Satra and for his melodious recitation of the verses. His intense love for the divine talks, especially for the Gita talks in Oriya, is actually an eye-opener to all the aspirants. I feel extremely inspired by his enthusiastic spiritual pursuit. While studying one article intensively, I came across Dr. Radharamanna, the world famous nuclear physicist, formerly chairman Atomic Energy Commission. His views he has offered in an article, a very eye-catching remark he has offered in an article regarding Vyasadeva's significance in the domain of divine knowledge. Dr. Ramana has cited three things from the Mahabharata. Jat iha asti tat anyatra. Jat iha asti tat anyatra. What we find in the Mahabharata, Vyasa's creation, like Mahabharata and others, that only we can see elsewhere in the world. That means, if at all we come across any knowledge from sources other than the composition of Vedavyas, that is either the same as the Vedavyasa's creation, or analogous to it, or reflection of it, or identical in nature with Vyasa's creations. Second thing, he has cited from that Mahabharata, that iha nasti tat kochit. If any aspect of knowledge does not find place in Vyasa's creations, then nowhere can we find it also. Very important thing. And third one, he has cited, Vyasochistam Jagat Sarvam. Oh, so significant one. Vyasochistam Jagat Sarvam. The whole gamut of knowledge, the whole world of knowledge emanates from Vyasadeva only. Dr. Ramana says, the Mahabharata is the poetic testament of the genius of a race that is identified with India. That means Vyasa's Mahabharata provides a poetic testimony that the genius of our race is of the highest magnitude, and this legacy of the genius of our race is true and true its entirety. And owing to the composition of this divine creation, the Bhagavatam, we are fortunate enough to bathe in divine bliss at least twice daily. As we proceed on and on in the Bhagavatam 10th canto, we come across more and more childish pranks of Lord Krishna. In the present scenario, Lord's betrayal of grace to the fruit vending woman is given much importance here. Vyasadeva has narrated the episode in only 2 verses, but the exegetists, the expositors, through their intuition, have captured many devotional elements from Vyasa's laconic narration. Lord Krishna, hearing the cry of the fruit vending women, rushed to her with paddy grains in the fold of his palms. Between the gaps of his finger, all paddy grains had slipped away except a few ones. From the phrase Chitadhanam, Karadvayam, the exegetists have aptly deciphered the implied aspects of the episode. Fruit vendor woman says, with these food grains, you cannot buy fruits from me. Tell me then, for the fruits, what will you give me in return? But Krishna told her, my mother and neighbor give me sweetened milk, and they never ask for anything in return. Then why are you asking me to pay? Amidst this conversation, a wonderful transformation came over the fruit vending woman. Krishna's sweet talks awakened the dormant maternal love in her. Balya Lila Vaisat, in a flurry of his puerile pranks, there arose in Krishna the intense greed for the fruits. All the fruits in the basket he held in his hands. But lo, behold, how could it be possible? Jata lobhatvena phalesu vaibhava sakte sahajat. Only due to his infinite divine majesty, Lord Krishna could hold all the fruits in his tiny palms.
The woman found his basket filled with jewels and gems in place of fruits. Carrying the fruits, Krishna slowly entered his house. The fruit vending woman kept staring at Krishna. Her heart became filled with devotion and renunciation. All the 8 physical modifications, Ashtasattvika Bhava, became manifest in her body. Tadavesh Lakshanat Parama Phala Prapti Suchita. She attained the final beatitude, the ultimate attainment, that is divine love, prem. Tadiya sarva phala pradatta saktya tat prema parjanta sarvaiva prema parjanta sarvaiva sampatti rabhut. Now I request the Venerable Acharya Narottam Prabhuji to continue his discourses from the verse that read Haritiragatam Krishnam Bhagnarjunam Matha Hoyat Ramam cha Rohini Devi Kridam Dangabalakai Brasam Nopayatam Jatha Hutu Krida Sangana Putrako Jasodam Presayamasa Rohini Putravatsalam. Hare Krishna, Hare Krishna. Now I request Venerable Acharya Krishna Narottam Prabhu to continue his discussion hereafter. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Utapadakkamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanvitangscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brundavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vaschatya Deshatarine. सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, सुधीजनों, महात्माजनों, विरक्तजनों श्रीमद्भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए उत्सुक भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं अभिनंदन निवेदन करता हूँ।
जैसे कि हमारे अत्यंत हितैषी एवं शुभेच्छु श्री पंडा बाबू ने अभी भगवान के कल हुई कथाओं का निरूपण कर रहे थे। अत्यंत संक्षिप्त रूप से आपने कल की कथाओं का उल्लेख किया एवं श्रीमद् महाभारत का जो महात्म्य है, महाभारत ग्रंथ की क्या दिव्यता है, उसका भी आपने प्रकाशन किया। और हम लोग ये जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ को प्रणयन करने के बाद भी व्यासदेव के मन में संतोष नहीं हो पाया, इसलिए देवर्षि नारद ने उनको आकर के श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ, जो भगवान का लीला प्रधान ग्रंथ है, भगवान की कीर्ति प्रधान ग्रंथ है, भगवान के चरित्र प्रधान ग्रंथ है, उसको प्रणयन करने के लिए कहा। तो वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों के सामने विद्यमान है। और भगवान की कृपा से, संतजनों की कृपा से ऐसे जो दिव्य ग्रंथ है उसको हम लोग सुबह एवं शाम आस्वादन करने में भगवान की कृपा से, समस्त संतजनों की कृपा से समर्थ हो रहे हैं। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है। तो कल हम उस लीला का श्रवण कर रहे थे जिस लीला में यह बताया गया था कि भगवान अपने बाल सखाओं के साथ और बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ विहार करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी के तट पर गए हैं। तो क्रीड़ा में इतना मन लग गया है, क्योंकि भगवान बालक हैं तो क्रीड़ा में मन लगना तो स्वाभाविक है। तो भगवान इतनी देर तक क्रीड़ा करते रहे कि दोनों मैयाओं को, यशोदा मैया को एवं रोहिणी मैया को चिंता हो गई कि कन्हैया एवं दाऊ ये क्यों नहीं आ रहे हैं क्रीड़ा से विरत होकर के। मध्याह्न का समय भी पार हो रहा था लेकिन ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो चिंता में पड़ गए थे दोनों माताएं। और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को भेजा कि आप जाइए, आप दोनों को बुला करके ले आइए। इसलिए यशोदा मैया ने भेजा था। तो यशोदा मैया को भगवान के आहार प्रस्तुत करने में बहुत ही सतर्कता बरत रही है एवं बहुत ही आनंद आता है। भगवान के खाद्य प्रस्तुत करने में, भगवान के आहार प्रस्तुत करने में मैया को, यशोदा मैया को बहुत ही आसक्ति है। तो इसलिए भगवान कैसे अत्यंत प्रेम से, अत्यंत रुचि से उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर पाएंगे, इसकी चिंता यशोदा मैया को ज़्यादा रहती थी। इसलिए आप उस काम में जुटी हुई थी, भोजन बनाने के काम में, भोजन प्रस्तुत करने के काम में, एवं भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय भोज्य वस्तु है, सेव्य वस्तु है, उसकी तैयारी में वो लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने रोहिणी मैया को भेजा कि आप जाकर के बुला के ले आइए। तो यहाँ कुछ व्याख्याकार ऐसा भी कहते हैं कि उनके पास तो बहुत दास दासियाँ थी, उनको क्यों नहीं भेजा। क्योंकि यशोदा मैया को मालूम था कि कन्हैया बहुत नटखट है और जब खेलता हो, जब खेल में उसका मन लगा हो, तो उससे खेल से विरत करना कोई आसान काम नहीं है। समुद्र पार करना बल्कि आसान है, लेकिन कन्हैया को खेल से विरत करना कोई सरल काम नहीं है। इसलिए वो कोई सामान्य दास दासी उस काम को नहीं कर सकती है। इसलिए या तो वे स्वयं जाएं या रोहिणी मैया को भेजें, जो भगवान का जिनसे प्यार अत्यधिक है, या जो लोग भगवान से जो अत्यधिक प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए ताकि दोनों को खेल से निवृत्त करके घर बुलाया जा सके। इसलिए रोहिणी मैया को भेजा। सरितीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं। तो बालकैः भृशं क्रीडन्तं, बालकों के साथ भृश खेल रहे हैं। भृश का मतलब है काफ़ी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, स्वभाव से ज़्यादा
अन्य अन्य दिनों में जितनी क्रीड़ा करते हैं उससे भी ज़्यादा क्रीड़ा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान को बुलाने के लिए जाना पड़ा रोहिणी मैया को। और दोनों मैया को यह चिंता भी थी, अभी श्री जीव गोस्वामी पाद बता रहे थे, यह लीला सरित तीरगत जो लीला है क्रीड़ा, यह यमलार्जुन के भंग के बाद हुई है। तो दोनों के चित्त में अत्यंत भय है कि कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, कहीं ऐसी दुर्घटना फिर से ना हो जाए, इसलिए दोनों चिंतित रहती थी। इसीलिए यहाँ पर विशेषण दिया गया है, भग्नार्जुनम अथा होयत कृष्णम भग्नार्जुनम अथा होयत। यह जो भग्नार्जुन भगवान का विशेषण दिया गया है, कृष्ण का विशेषण दिया गया है, इससे द्योतित होता है कि उस घटना के चलते, अर्जुन वृक्ष के गिरने के चलते, दोनों मैया के हृदय में भगवान की सुरक्षा के प्रति एवं भगवान की कुशलता के प्रति दोनों मैया अत्यधिक अतिशयित चिंतित हैं, इसलिए जा कर के बुला रही हैं। तो इस श्लोक को तो हम लोग कल पढ़ लिए थे, इसकी व्याख्या भी सुन लिए थे, लेकिन मैं एक बार उस व्याख्या को केवल उच्चारण करना चाहूँगा, तो उससे थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाएगा हम लोगों को। अथ श्री यशोदाया, देखिए इस लीला का अर्थात यह जो सरित तीरगत लीला है, भगवान की क्रीड़ा की लीला है, इसमें दो चीज ध्यान देने की, दो चीजें हैं। एक तो है कि भगवान की क्रीड़ा लीला है, और एक दूसरी चीज है कि रोहिणी यशोदा मैया का भगवान के प्रति प्यार कितना अधिक है। अर्थात अगर वात्सल्य प्रेम अतिशयित अवस्था में पराकाष्ठा को प्राप्त किया हो तो ये यशोदा मैया में, अर्थात इतना वात्सल्य और किसी में हो नहीं सकता है। अर्थात यशोदा मैया का वात्सल्य संसार में, ब्रह्मांड में और कहीं भी सर्वाधिक वात्सल्य यशोदा मैया का भगवान के प्रति है। इस बात को भी कहने के लिए, इस बात को प्रतिष्ठापित करने के लिए इस लीला का उल्लेख किया गया है। भगवान की क्रीड़ा की लीला तो है ही है, और उसके साथ यशोदा मैया का जो वात्सल्य की जो पराकाष्ठा है उसको भी प्रतिपादन करना इस लीला का अभिप्राय है। अथ श्री यशोदाया श्री रोहिणीतोपि श्री रामेपि वशीकारी वात्सल्यातिशयं दर्शयितुं श्री यशोदया परम वात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्र लालनादिकम् उद्दिशन् दामोदर लीलायाः क्रम प्राप्तं दिनैक कृत्यम आह सरित इत्यादिना उदयम इत्यंतेन। अर्थात सरित तीरगतम यहाँ से लेकर के यह जो श्लोक है 20 नंबर का श्लोक, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेहा निबद्ध धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। इस श्लोक में अंतिम शब्द है अथोदयम। तो जीव गोस्वामी पाद उसी बात को कह रहे हैं, सरित इत्यादि ना, सरित तीरगतम यहाँ से लेकर के कृतवत्यथोदयम यहाँ तक इस लीला की अवधि है। तो इसमें कम से कम 3, 3, 6, 7, 8, 9 पद्य हैं। इन 9 पद्यों में इस लीला का विवरण दिया गया है। सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथा होयत रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम्। सरित्तीरगतमिति भग्नौ अर्जुनौ येन, अर्थात जिन भगवान के द्वारा, जिन कृष्णचंद्र के द्वारा दोनों अर्जुन भग्न हो गए थे, धराशायी हो गए थे, तम आह्वयतीति वात्सल्येन तदनुसंधानात् अनिष्टाशंका दर्शिता। तदनुसंधानात् इसका मतलब है कि उस बात का अनुसंधान करने के कारण, अर्थात ऐसी एक दुर्घटना हुई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 7 दिन पहले, इसका अनुसंधान करने से, इसकी याद करने से दोनों मैया अत्यंत
चिंतित रहती थी, आशंकित रहती थी, कहीं ऐसा अनिष्ट फिर से दोबारा न आ जाए। यह कोई राक्षस उपद्रव वाली बात नहीं थी। राक्षसों का उपद्रव, पूतना, सकट एवं तृणावर्त, ये तो दूसरे तरह से उपद्रव है, और यह जो अर्जुन भंग लीला, ये दूसरे तरह की उपद्रव है। तो इसमें किसी को दोष देने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूतना आदि लीला में तो राक्षसों को दोष देने का एक गुंजाइश है, यहाँ किसको दोष दें? भगवान ने खुद ही तो ऐसा काम किया है। तो इसलिए वो चिंतित रहते थे, यह दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है, क्योंकि ये लाला का ही काम है, अर्थात ये श्री कृष्णचंद्र के कारण ही ऐसा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए वो चिंतित रहती थी। तो शंका दर्शिता कृष्णम क्रीड़ाविष्ट चित्तम सरितीरगतम कृष्णम। तो कैसा कृष्ण? न क्रीड़ाविष्ट चित्तम अथेति कार्त्स्येन सर्वैरेव नामभिरिति। श्लोक में जो भग्नार्जुनम अथा हुयत, यहाँ अथ शब्द का अर्थ है कार्त्स्य। कार्त्स्य अर्थात समग्रता। समग्रता अर्थात भगवान के जितने भी नाम थे, मैया रोहिणी मैया जितना नाम से भगवान को पुकारती थी, वो सभी नाम लेकर के बुला रही थी, खेल से निवृत्त होकर के घर आ जाने के लिए। इस तरह का अभिप्राय श्री जीव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। रोहिणी तद भोजन साधन अत्यासक्तया यशोदया एवं प्रेषिता। यशोदा मैया के द्वारा ही रोहिणी मैया का प्रेषण किया गया था, बुलाने के लिए कहा गया था। और यशोदा मैया कैसी है? तद भोजन साधन अत्यासक्तया, अर्थात भगवान का जो भोजन है उसका जो साधन है, साधन का मतलब प्रिपरेशन, तैयारी में वो अत्यंत आसक्त थी। तो इसलिए यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को भेजा। तथा च श्रीकृष्णाह्वानेन रामाह्वानम अपि ऊह्यम। यद्यपि श्लोक के पूर्वार्ध में केवल श्री कृष्णम भग्नार्जुनम अथा होयत, यहाँ केवल श्री कृष्ण की बात कही गई है, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि केवल श्री कृष्ण को बुलाने के लिए रोहिणी मैया गई थी, भगवान बलराम को भी बुलाने के लिए गई थी, क्योंकि उत्तरार्ध में कहा गया है रामं च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालगैर्भृशम, तो रामं च। लेकिन कृष्ण ऐसा जब कहा गया तो उनका एक विशेषण दे दिया गया, भग्नार्जुनम अथा होयत। तो इसी से पता चलता है कि दोनों के चित्त में उस घटना के कारण भगवान को लेकर के कितनी चिंता रही थी, उसी बात को कह रहे हैं। रामाह्वानम अपि ऊह्यम उत्तरानुरोधेन। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे। तो जब रोहिणी मैया गई और वहाँ जाकर के भगवान को बुलाती है, लेकिन सफल नहीं होती है। भगवान कृष्णचंद्र को, नंदनंदन को एवं वसुदेव नंदन को यानी बलराम भगवान को खेल से निवृत्त करने में समर्थ नहीं हो रही है। नोपेयाताम यदा हूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। नोपेयाताम यदा हूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। तो रोहिणी यशोदाम प्रेषयामास, जब रोहिणी मैया दोनों को खेल से निवृत्त करने में समर्थ नहीं हो पाई, दोनों को बुला करके नहीं आ पाई, तो वो भी चिंता में पड़ गई कि कैसे होगा, इन दोनों को खेल से कैसे निवृत्त किया जाए। तो उनके मन में आया कि मेरे से तो नहीं हो रहा है, लेकिन यशोदा ये काम कर सकती है। तो आकर के उन्होंने यशोदा मैया से कहा, और यशोदा मैया का एक विशेषण दिया गया है पुत्र वत्सलाम। पुत्र वत्सला, पुत्र वत्सला तो दोनों ही हैं, लेकिन जीव गोस्वामी बाद शुरू में इस लीला के आरंभ में जिस बात को कह रहे थे, उसी बात की ओर
यह यशोदाम पुत्र वत्सलाम, पुत्र वत्सला यह जो विशेषण यशोदा मैया के लिए है वो उसी की ओर से इंगित करता है कि यशोदा मैया का भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव है वो विरल है, वो अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं है। इसीलिए यशोदा मैया पुत्र वत्सला है। उन्हीं को रोहिणी मैया ने भेजा कि आप जाकर के उनको बुला के लाइए। क्यों? नोपेयाताम यदा आहूतौ, यदा आहूतौ, आहूत अर्थात बार बार बुलाए जाने पर, विभिन्न नामों से बुलाए जाने पर, यदा न आगतो न उपेयाताम, जब वापिस नहीं आए। क्यों नहीं आए? न क्रीड़ा संगेन, क्रीड़ा के प्रति उनका जो संग है, आसंग है अर्थात आसक्ति है, क्रीड़ा में इतने निमग्न हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं, क्रीड़ा के प्रति इतना प्रेम है कि उस क्रीड़ा को छोड़ करके दोनों आना नहीं चाहते हैं। नोपेयाताम यदाहूतौ क्रीड़ा संगेन पुत्रकौ, पुत्रकौ अर्थात दो पुत्र भगवान श्री बलराम एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र, पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। यहाँ पर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक प्रश्न उठाते हैं जो श्री जीव गोस्वामी पाद नहीं उठा पाए हैं। उनका कहना है ननु एतयोः, पहले तो रोहिणी मैया गई थी बुलाने के लिए, यशोदा मैया ने भेजा था। अब रोहिणी मैया आकर के यशोदा मैया को भेज कर तुम ही जाओ, तुम जाकर के उनको बुला लो। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक प्रश्न उठाते हैं, ननु एतयोः राजपत्न्योः भवनात् निर्गत्य सरित्तीर पर्यंत गमनम कथम। अर्थात ये दोनों राजपत्नी हैं, नंद बाबा भी अपनी जगह पर राजा हैं और वसुदेव जी महाराज वे भी शायद कुछ प्रतिपत्ति संपन्न है, वो भी राजा जैसे हैं। तो ये तो दोनों राजपत्नी हैं, तो दोनों कैसे घर से निकल करके गृहवधू को ऐसे घर से निकल करके जाना नहीं चाहिए था। जब इतने दास दासी हैं तो उन्हीं को भेज करके बुला लेना चाहिए था, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। ननु एतयोः राजपत्न्योः भवनात् निर्गत्य सरित तीर पर्यंत गमनम, और आसपास में नहीं है, सरित तीर तक जाना है, अर्थात यमुना जी के तट पर जाकर के बुलाना है। तो ये कैसे संभव हुआ, क्यों गई? कथम इति चेत तत्प्रदेशस्य निर्जनस्य भवन कक्षांतर तुल्यत्वात्। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं कि वह जो मार्ग था, अर्थात नंद बाबा के घर से यमुना तट तक जहाँ पर भगवान क्रीड़ा कर रहे थे अपने सखाओं के साथ, वो थोड़ा सा निर्जन था। निर्जन अर्थात ऐसे आम लोग उस रास्ते में आया जाया नहीं करते थे, तो इसलिए उनको दोनों को घर से बाहर करके खुद जाने में कोई संकोच नहीं था। और दूसरी बात है, आगे कह रहे हैं तत्प्रदेशस्य निर्जनस्य भवन कक्षांतर तुल्यत्वात्, अर्थात वो कोई नंद बाबा के घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। क्यों? भवन कक्षांतर तुल्यत्वात्। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं जैसे भवन में, राजभवन में या नंद बाबा के भवन में एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने में जितनी दूरी होती है या जितनी आसानी होती है, अर्थात जितना उपद्रवहीनता रहता है या दूसरे लोगों के दृष्टि पड़ने का कोई डर नहीं रहता है, उसी तरह की वहाँ बात थी। इसलिए दोनों यद्यपि गृहवधू हैं फिर भी वे खुद भगवान को बुलाने के लिए चली गई हैं। तस्य तत्प्रदेशस्य निर्जनस्य भवन कक्षांतर तुल्यत्वात्। भवन में जैसे कक्षांतर होता है, एक रूम से एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने में बहुत बाधा या बहुत प्रतिबंध नहीं होता है, तो उसी तरह के प्रतिबंध शून्य वह मार्ग था, वह नदी यमुना जी का तट था, इसलिए दोनों चली गई थी। कैसे न पक्षद्वारेण तत्गमनम सुघटम इति गृहाण। पक्षद्वारेण अर्थात
नंद बाबा का जो सामने का जो द्वार था, घर का सामने का जो रास्ता था, उसमें तो लोगों का आना जाना लगा रहता था क्योंकि वो मुख्य मार्ग था। लेकिन कक्ष द्वार अर्थात घर के एक साइड में एक तरफ से जो दूसरा द्वार होता है, जिसकी वर्णना दामोदर लीला में हुई थी, अर्थात भगवान उस कक्ष द्वार से निकल करके बानरों को मक्खन खिला रहे थे। तो उसी कक्ष द्वार की चर्चा यहाँ भी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कर रहे हैं। तो कक्ष द्वार से निकल करके दोनों मैया बारी बारी से जाकर के भगवान को बुला रहे थे। इस तरह से समझना चाहिए। तद्गमनम सुघटम इति गृहाण, ऐसा आप लोग समझिए कि उनका जाना कोई इतना आपत्तिजनक या इतना असंभावित नहीं है। नोपेयातां यदा हूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। अब श्री जीव गोस्वामी पाद की जो वैष्णव तोषिणी टीका है उसके आधार पर इसको श्रवण करेंगे। एवं आहुतौ अपि यदा नायातो नोपेयाताम, एवं आहुतौ अपि बुलाए जाने पर भी यदा नोपेयाताम यशोदां प्रेषयामास इति उभयत्रापि तस्याः एव वात्सल्याधिक्यानुभवेन शीघ्र तदाकर्षण सामर्थ्य निर्णयात्। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यशोदा पुत्र वत्सला। यहाँ पुत्र वत्सला शब्द का यह अर्थ नहीं है कि भगवान के प्रति अर्थात श्री नंदनंदन के प्रति यशोदा मैया का जो वात्सल्य है वह रोहिणी मैया से अत्यधिक अधिक है। केवल इतना ही तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य यहाँ तक भी है कि भगवान बलराम के प्रति भी यशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो भी रोहिणी माता से वात्सल्य ज्यादा है। यह उसमें तथ्य है, ये उसमें रहस्य है। इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद प्रकाशित कर रहे हैं। यशोदां प्रेषयामास इति उभयत्रापि, उभयत्रापि अर्थात दोनों प्रति, दोनों के प्रति, अर्थात भगवान नंदनंदन के प्रति एवं भगवान वसुदेव नंदन के प्रति उभयत्रापि तस्याः एव वात्सल्याधिक्य अनुभवेन, ऐसा अनुभव कर रही है रोहिणी मैया। सत्य क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन रोहिणी मैया का यह अनुभव हो रहा है कि मेरे से भी यशोदा के हृदय में दोनों पुत्रों के प्रति, भगवान नंदनंदन के प्रति एवं वसुदेव नंदन के प्रति उनका वात्सल्य मेरे से भी ज्यादा है। इसलिए वो जाएगी तो वो संभाल सकती है। यह जो दुरूह व्यापार है, जिस काम को मैं करने में असमर्थ रही उस काम को यह जाकर के कर सकती है। क्यों? वात्सल्याधिक्येन शीघ्र तदाकर्षण सामर्थ्य निर्णयात्, अर्थात वे शीघ्र उनका आकर्षण करके अर्थात उनको बुला करके अपने वात्सल्य से, अपने प्रभाव से दोनों को आकृष्ट करके वह शीघ्रातिशीघ्र क्रीड़ा से विरक्त करा सकती है। ऐसा निर्णय हो गया रोहिणी मैया के हृदय में। इसलिए वे आकर के कह रही हैं यशोदां प्रेषयामास, रोहिणी प्रेषयामास यशोदां पुत्रवत्सलाम। श्री जीव गोस्वामी पाद आगे कह रहे हैं किमर्थम न पुत्रयोः वत्सला, दोनों पुत्रों के प्रति वो वात्सल्य भाव संपन्ना है वत्सला। सरितीरे नानोपद्रवशंकया तयोः स्नपन भोजनेच्छयेति भावः, अर्थात हर तरह से यथाशीघ्र दोनों बच्चे खेल से विरत होकर के आ जाएं, क्योंकि दो चिंता है। एक तो भूख काफी लगी होगी, सुबह थोड़ा बहुत कुछ भोजन आहार दोनों ने किया था तो अभी काफी देर हो चुकी है, तो दोनों को भूख काफी लगी होगी, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। एक तो यह चिंता, और दूसरी चिंता यमलार्जुन भंग की जो चिंता है, उसकी जो स्मृति है, उस स्मृति के कारण भी दोनों ही उद्विग्न रहती थी। तो इन दोनों चिंताओं के कारण हर तरह से दोनों को यथाशीघ्र बुला करके बुला लिया जाए, घर में वापिस ले आया जाए। इस तरह की चिंता में दोनों मैया बारी बारी से वहां जाकर के भगवान को बुला रही है।
नोपेयातां यदा हूतौ क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलां क्रीडन्तं सा सुतं बालै रतिबेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवित् कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी क्रीडन्तं सा सुतं बालै रतिबेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवित् कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। तो यशोदा अजोहवित, यशोदा मैया ने भगवान को बुलाया, सुत को बुलाया, कृष्ण को बुलाया। कैसा कृष्ण? सहाग्रज, अग्रज सहित जो कृष्ण हैं, अपने सुपुत्र हैं, अपने सुत हैं, उनको बुलाया। कैसे? बाले ही क्रीडंतम, जो बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और अभी जो बताया गया था पुत्र वत्सलाम, तो उसका निदर्शन यह है पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी, अर्थात भगवान के याद में ही, अर्थात भगवान के स्मरण में ही उनके स्तन से दुग्ध झरना शुरू हो जाता है। अर्थात वात्सल्य की मात्रा इतनी अधिक है कि केवल जब भी वे भगवान को स्मरण करती हैं, अपने पुत्र की याद करते हैं, तो उनके वक्षस्थल से स्तन्य का झरना शुरू हो जाता है। यशोदा जोहवित् कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। तो इस पर तो ज्यादा व्याख्या शायद नहीं है। श्री चक्रवर्ती बात कहते हैं अजोहवित्, अजोहवित्, अजोहवित् करें पुनः पुनः आजुहाव, यह अजोहवित्, यह शायद यंगलुम का रूप है। तो अजोहवित् अर्थात पुनः पुनः आजुहाव, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, बार बार बुला रही थी। तो श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं बुलाने की क्या जरूरत थी, खुद चली जाती और हाथ पकड़ करके, कान को पकड़ करके ले आती, चलो इतनी देर से क्या कर रहे हो यहाँ। तो ऐसा नहीं कर रही थी। क्यों? न निकट गमने पलायन संकया दूरतः एव इति भाव, क्योंकि इससे पहले मैया को अनुभव है, जिस दिन उनको बांधना चाहती थी दामोदर लीला में, उस दिन मैया को कितना भागना पड़ा, और भगवान भाग रहे हैं, मैया भी भाग रही है। तो मैया तो जब पसीने से तरबतर हो गई, तब भी भगवान उनके हाथ नहीं आ रहे थे। तो मैया को मालूम है मैं भाग करके इसको नहीं पकड़ सकता हूँ। दूसरी बात है, उस लीला के समय में भगवान जितना उम्र के थे, अभी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, और इतना बालकों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं, भागने में और भी तेज हो गए हैं। इसलिए यशोदा मैया वो साहस नहीं कर रही थी, मैं खुद जा करके उनको पकड़ करके ले आऊँगा, इस तरह का साहस नहीं कर रही थी। और यशोदा मैया का शरीर थोड़ा सा भारी भी है, इसका हम लोग ने श्रवण किया है वो दामोदर लीला में। इसलिए मैया दूर से ही बुला रही थी, हे कृष्णा हे कृष्णा, इस तरह से बुला रही थी। तो क्रीडंतम सासुतम बालैर अतिबेलम, अतिबेलम क्रीडंतम अर्थात बेला का अतिक्रमण हो गया है। यह क्रीडंतम अर्थात क्रीड़ा का विशेषण है। अतिबेलम बेलाम अतिक्रम्य क्रीडंतम, खेलने का जो समय था वो समय अभी अतिक्रांत हो चुका है, फिर भी भगवान क्रीड़ा से निवृत्त नहीं हो रहे हैं, क्रीड़ा से उनका मन उगता नहीं है, इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं। क्रीडंतम सासुतम बालैः रतिबेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवित् कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। कैसे बुला रहे हैं? कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तातयेहि स्तनं पिब अलम विहारैः क्षुक्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तातयेहि स्तनं पिब अलम विहारैः क्षुक्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक। हे कृष्णा हे कृष्णा, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन कृष्ण, हे तात एहि, इसी को लक्ष्य करके
इसी इसी पद्य को लक्ष्य करके शायद जीव गोस्वामी पाद वहां कह रहे थे, अथ इति कार्त्स्ने सर्वैरेव नाम भी, समस्त नामों से। तो यहाँ पर भगवान को मैया कृष्ण कृष्ण करके बुला रही है, अरविंदाक्ष कह करके बुला रही है, तात कह करके बुला रही है, और पता नहीं भगवान के कितने नाम उनको मालूम है, सभी नामों से भगवान को बुला रही है। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनं पिब अलम विहारैः क्षुच्छान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रका। तो हे कृष्ण, हे अरविंदाक्ष, हे तात एहि अर्थात आगच्छ, हाँ आगच्छ कृष्ण। तो एहि स्तनम पिब, आकर के स्तन्यपान करो। क्यों? क्षुत क्षांत हसी, क्षुधा के द्वारा तुम क्षांत यानी क्षीण हो गए हो, अर्थात क्षुधा के द्वारा तुम श्रांत हो गए हो, इसलिए अलम विहारे ही, अब आगे क्रीड़ा मत करो, खेल बंद करके तुम आकर के मेरा स्तन्यपान करो। क्रीड़ा श्रांतोऽसि पुत्रका, हे पुत्रका, हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम क्रीड़ा श्रांतोऽसि, क्रीड़ा के कारण श्रांत हो चुके हो। तो इस पर श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण इति बीप्सा दूरतः श्रवणाय। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, तो कृष्ण कृष्ण बार बार कृष्ण नाम का उच्चारण करने का अभिप्राय यह है, बार बार उनका नाम लेकर के बुलाने का अभिप्राय यही है, दूरतः श्रवणाय, क्योंकि मैया पास नहीं जा रही है, मैया को मालूम है मैं जाऊंगी तो वो भाग जाएगा, और तो इसलिए दूर दूर से बुला रही है। तो दूर से इसलिए बुला रही है कि बार बार बुलाने से भगवान उनकी पुकार को श्रवण कर सके। तो ये मैया का जो कृष्ण कृष्ण कह करके बुलाने का जो तरीका है, तो ये हम लोगों को यही सिखाता है कि भगवान को हम बार बार भगवान के नामोच्चारण पूर्वक भगवान को बुलाएं, क्योंकि भगवान बारंबार नामोच्चारण करके बुलाने से भगवान हमारी पुकार को सुनते हैं। तो मैया जैसा समझ रही थी कि चाहे भगवान दूर हों, लेकिन अगर हम बार बार उनका नाम लेकर के उच्चारण करेंगे तो वो सुन पाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग अगर भगवान का नाम बारंबार उच्चारण करेंगे एवं अपने प्यार से उच्चारण करेंगे, अत्यंत मनोयोग से उच्चारण करेंगे, तो चाहे हमारा उच्चारण कैसा हो, लेकिन भगवान कृपा पूर्वक उसका श्रवण करेंगे। कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष तात एहि स्तनं पिब अलम विहारैः क्षुच्छान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रक। कृष्ण कृष्ण इति बीप्सा दूरतः श्रवणाय, क्योंकि दूर में खेल रहे हैं, वो सुन पाए इसलिए बार बार बुला रही हैं। निजाग्रह व्यक्त च, दो कारण, निज आग्रह व्यक्त, अर्थात भगवान को बुलाने के लिए वो कितना उत्सुक है, कितना चिंतित है, अर्थात भगवान को शीघ्र क्रीड़ा छोड़ करके आ जाना चाहिए, इस तरह का उनका जो मनोभाव है, उनका जो संकल्प है, उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा को भी यह बार बार बुलाना प्रकाशित कर रही है। दो, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, बार बार बुलाने का दो तात्पर्य है कि भगवान दूर हैं, वो श्रवण कर सकें। दूसरी बात है वो कितना चाहती है, चाहती है कि यथाशीघ्र यह क्रीड़ा खत्म हो और भगवान घर वापिस आ जाएं। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष कृष्ण कृष्ण इति बीप्सा दूरतः श्रवणाय निजाग्रह व्यक्त च, अर्थात वे कितना आग्रही हैं, कितना चाहते हैं, अर्थात कि वो क्यों चाहती हैं कि यथाशीघ्र खेल खत्म हो, खेल छोड़ करके आए, यह कृष्ण कृष्ण शब्द से प्रकाशित होता है। हे अरविंदाक्ष, हे तात इति सलालनम संबोधनम, यह प्रेम पूर्वक संबोधन। हे तात, तात संबोधन बहुत ही प्रेम पूर्वक संबोधन है, बहुत ही स्नेहपूर्ण संबोधन है, क्योंकि तात का मतलब पिता, तो बेटे को तात बाबा कह करके बुलाना, तो जब पिता माता के हृदय में अतिशय स्नेह होता है तभी उनको तात कह करके बुलाया जाता है। हे तात इति सलालनम संबोधनम, क्यों?
क्यों इतना 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 प्रेम से क्यों पुकार रही है? यह शीघ्रागमनाय, भगवान मेरी बात को सुन करके, मेरा लाला मेरी बात को सुन करके, मेरी पुकार को सुन करके यथाशीघ्र घर वापिस आ जाए, यह मैया के हृदय में चिंता थी। असंधि प्लुत प्रकृतिस्थत्वात् असंहिततया पाठात्। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, तो कृष्ण अरविंदाक्ष यहाँ तो संधि हो गया है, लेकिन तात एही तो यहाँ संधि नहीं हुई है, तो यहाँ प्लुत संज्ञा हुई है और प्रकृति भाग हुआ है। दूराद्धूते च आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यह जो उदाहरण है उस तरह का यह उदाहरण है। कृष्ण तात एही, हे तात एही, तो यह भी संबोधन है, तो यहाँ प्लुत संज्ञा हुई है, प्लुत होने के कारण प्रकृति भाव हुआ है, इसलिए संधि नहीं हुई है। असंधि प्लुत प्रकृतिस्थत्वात् असंहिततया पाठात्। आगे कह रहे हैं भयेपि कारणे सति यत् क्षुच्छ्रान्तः इत्येव उक्तम तत् तस्य अमंगलत्वेन वक्तुम अनिष्टत्वात्। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैया ये नहीं कह रही है कि हे कृष्ण तुम शीघ्र घर वापिस आ जाओ, क्योंकि यमुना के तट पर राक्षसों का उपद्रव है या हिंस्र जंतुओं का उपद्रव है, इस तरह की बात नहीं कर रही है। या 2-3 दिन पहले अभी यमलार्जुन का जो भंग होता है उस तरह की कोई दुर्घटना होने वाली है। मैया, यद्यपि मैया के हृदय में यह भाव है, लेकिन उसको मैया व्यक्त नहीं कर रही। मैया दूसरे कारण दे रही है शीघ्र आने का, शीघ्र वापिस आने का, शीघ्र घर वापस आने का दूसरा कारण दे रही है। क्रीडा श्रांतोसि पुत्रकः क्षुच्छ्रान्तःसि, अर्थात तुमको काफी भूख लगी होगी और तुम क्रीड़ा के कारण श्रांत थक गए हो, ऐसा मैया कह रही है। क्यों? उसको जीव उसमें बात करें। भयेपि कारणे सति, यद्यपि मैया के हृदय में भय भी एक कारण है भगवान को शीघ्र घर बुलाने का, फिर भी यत् क्षुच्छ्रान्तः इत्येव उक्तम तस्य अमंगलत्वेन वक्तुम अनिष्टत्वात्। तो मैया के हृदय में जो भय है कि वहाँ राक्षसों का उपद्रव है या हिंस्र जंतुओं का उपद्रव है या कोई और दूसरी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा मैया अपने मुंह से नहीं कह रही है, क्योंकि वो अमंगल शब्द उच्चारण नहीं करना चाहती है। भगवान के बारे में या भगवान को बुलाने के समय या भगवान के किसी भी प्रसंग में उस अमंगल घटना को प्रकाशित नहीं करना चाहती, अपने मुख से भी उच्चारण नहीं करना चाहती है। यद्यपि उनके हृदय में भगवान को लेकर के यह चिंता है, लेकिन उस चिंता को वो शब्द से प्रकाशित नहीं कर रही है। भयेपि कारणे सति यत् क्षुच्छ्रान्तः इत्येव उक्तम तत् तस्य अमंगलत्वेन वक्तुम अनिष्टत्वात्। तस्य अमंगलत्वेन अर्थात कृष्णस्य अमंगलत्वेन या तादृश शब्दस्य अमंगलत्वेन वक्तुम अनिष्टत्वात्। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनं पिब अलम बिहारे क्षुक्षान्तः क्रीडा श्रान्तोऽसि पुत्रक। हे रामा गच्छ तातासु सानुजः कुलनन्दना प्रातरेव कृताहार तद्भवान् भोक्तुमर्हति। हे रामा गच्छ तातासु सानुजः कुलनन्दना प्रातरेव कृताहार तद्भवान् भोक्तुमर्हति। मैया थक गई, भगवान कुछ होल डोल कुछ भी नहीं, कुछ सुनना नहीं चाहते। मैया की बात, मैया की पुकार भगवान नहीं सुनना चाहते हैं, खेल से विरत नहीं होना चाहते हैं। तो मैया के मन में एक विकल्प यह आया कि बलराम भी इस खेल में हैं और वे बड़े हैं कन्हैया से, और उनका कन्हैया के ऊपर थोड़ा जोर भी है, तो उनको बुला करके अगर हम कहें तो वो बलपूर्वक हो या किसी और उपाय से हो कृष्ण को खेल से निवृत्त कर सकता है। ऐसा उपाय सोच करके
मैया ने भगवान बलराम को बुलाना शुरू किया। हे रामागच्छता तासु सानुजः कुलनंदन। हे राम, हे बलराम, हे रोहिणी नंदन, आगच्छ, तुम आ जाओ। हे तात, यहाँ भी उसी तरह का संबोधन है, हे तात, अर्थात यहाँ भी प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक संबोधन है। आसु सानुजः कुलनंदन, हे तात, हे रामागच्छ तातासु, हे राम आसु आगच्छ, शीघ्र आ जाओ, शीघ्र वापिस आ जाओ। हे कुलनंदन, कैसे आ जाओ? सानुज, अपने अनुज को लेकर के, कन्हैया को लेकर के तुम वापिस आ जाओ। हे कुलनंदन, देखिए यहाँ बलराम भगवान को कुलनंदन कह करके संबोधन कर दिया मैया ने। भगवान को ऐसा संबोधन नहीं किया। तो कुलनंदन कह करके श्री जी गोस्वामी पाद इसका रहस्य समझाएंगे। कुलनंदन बहुत बड़ा एक सम्मान की बात होती है, अर्थात हमारे वंश का, अर्थात वसुदेव कुल का भी तुम नंदन हो, अर्थात आनंद देने वाले हो, और नंदनंदन भी हो, अर्थात नंद कुल को, अर्थात गोकुल का भी आनंद करने वाले हो। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। इस संबोधन में बलराम के लिए, भगवान बलराम के लिए बहुत बड़ी बात मैया ने कहा। इसलिए कहा कि भगवान बलराम को ऐसा कहकर संबोधन करने से श्री कृष्ण भगवान में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, अर्थात पिता माता अपने बच्चों को बड़े करने के समय कितनी कितनी उपाय, कितनी राजनीति खेलते हैं, वो सब यहीं दिख रहा है। अर्थात भगवान बलराम को कुलनंदन कह करके बुलाने से भगवान श्री कृष्ण के चित्त में ईर्ष्या होगी। वह कुलनंदन है, मैं तो साधारण हूँ, ऐसा सोच करके, ऐसी ईर्ष्या से वो पहले आ जाएंगे, अर्थात भगवान बलराम के आने से पहले ही वो आ जाएंगे। इस तरह का कुछ भाव है जिसको श्री जी गोस्वामी पाद प्रकाशित करेंगे। हे रामागच्छता तासु सानुजः कुलनंदन, अपने अनुज के साथ आप चले आओ, क्योंकि आप कुलनंदन हो, आप हमारे वंश को आनंद वर्धन करने वाले हो। प्रातरेव कृताहारः, भोजन तुमने कब किया था? प्रातः कुछ प्रातरास किया था, अर्थात सुबह कुछ नाश्ता पानी थोड़ा बहुत तुमने किया था। प्रातरेव कृताहार तद्भवान भोक्तुमर्हति, अर्थात अब भोजन का समय निकल चुका है, अति बेल हो गया है, अतिक्रांत हो गया है, इसलिए तुम शीघ्र आ जाओ। हे रामागच्छता तासु सानुजः कुलनंदन, प्रातरेव कृताहार स्तब्धवान भोक्तुमर्हति। श्री जी गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तथापि अनायांतम अग्रजो मदवाक्य प्रतिपालको बलात् आनेष्यति। तथापि अनायांतम, अर्थात अनायत जो कृष्ण है, आ नहीं रहे हैं जो कृष्ण, उनको अग्रजो मद वाक्य प्रतिपालक, यशोदा मैया को भरोसा है कृष्ण हमारी बात भले न माने, लेकिन यह तो मेरी बात को मानेगा ही। तो इसलिए मद वाक्य प्रतिपालक, मेरी आज्ञा को पालन करने वाला यह जो बलराम है, तो वो अवश्य मेरी बात को मानेगा, और उसका जोर भी है कृष्ण के ऊपर। तो बलात् आनेष्यति इति आशयेन, वो बलपूर्वक कृष्ण के हाथ को पकड़ करके वो खींच करके ले आएगा। इस आशय से, इस अभिप्राय से मैया कह रही है, हे रामागच्छता तासु सानुजः कुलनंदन, प्रातरेव कृताहार स्तब्धवान भोक्तुमर्हति। यतः कुलनंदनः त्वं, हे राम त्वं कुलनंदन, तुम हमारे कुल का, हमारे वंश का, हमारे गोकुल का एवं मथुरा का, वसुदेव वंश का तुम नंदन हो, अर्थात आनंद संपादक हो। इति इत्यादि ना कृष्णस्य शीघ्रागमनार्थम ईर्ष्यां जनयति, अर्थात भगवान शीघ्र आ जाएं
भगवान नंदनंदन शीघ्र आ जाएं, इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या को उत्पन्न करा रही है यशोदा मैया। ऐसा संबोधन करके, अर्थात भगवान बलराम को तात कह करके संबोधन करके, कुलनंदन कह करके संबोधन करके, अर्थात इतना बढ़िया बढ़िया प्रेम पूर्वक जो संबोधन, ऐसा सुन करके कृष्ण के चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न होगी तो वह बलराम से पहले ही आकर के हमारे पास पहुंच जाएगी। इस अभिप्राय से मैया बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रही है। संबोधन पाठे भी स एव अर्थ, अर्थात यहाँ हे रामागच्छतातासु सानुजः कुलनंदनः, अर्थात कुलनंदनः त्वम आगच्छ, ये भी हो सकता है किंबा हे कुलनंदन त्वम आगच्छ। चाहे ये संबोधन में पाठ हो या प्रथमांत पाठ हो, दोनों का अभिप्राय एक ही है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चित्त में ईर्ष्या को उत्पन्न करना। हे पुत्रक इति तस्मिन्नपि पुत्रवत् स्नेहात्, अर्थात यहाँ पर मैया कह रही है, यशोदा मैया कह रही है, हे पुत्रक, हे रामा, हे रामागच्छतातासु सानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति। देखिए, हम लोग जब शुरू में इसका पाठ शुरू किए थे तो उस समय श्री जीव गोस्वामीपाद हम लोगों को यह सतर्क करवाए थे कि यहाँ का जो पाठ है तो ये जो गौड़ीय संप्रदाय का जो पाठ है उस तरह से है, इसलिए यहाँ पर शब्दों का विपर्यय भी हो सकता है और पाठ में व्यतिक्रम भी हो सकता है। तो अभी जैसे हम 15 नंबर श्लोक को पढ़ रहे थे, वहाँ पर है कृष्ण कृष्णा रविंदाक्ष तात ये स्तनम पिब अलम बिहारी क्षुक्षांत क्रीड़ा श्रांतोसी पुत्र का। लेकिन श्री जीव गोस्वामीपाद के व्याख्या को देखने से यह पता चलता है क्रीड़ा श्रांतोसी पुत्र का यह अंश दूसरे श्लोक में है, यानी 16 नंबर श्लोक में है, और भवान भोक्तुम तद्भवान भोक्तुम रहती है 15 नंबर श्लोक का है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, हे रामागच्छतातासु सानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहार क्रीड़ा श्रांतोसी पुत्र का। यह अंश क्रीड़ा श्रांतोसी पुत्र का यह अंश दूसरे श्लोक में है, 16 नंबर के श्लोक में है। इसलिए श्री जीव गोस्वामीपाद उस तरह की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हे पुत्र का इति तस्मिन्नपि पुत्रवत् स्नेहात्, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति मैया का, यशोदा मैया का जो भाव, जो वात्सल्य, जो स्नेह था, वही स्नेह भगवान बलराम के प्रति था। और यह स्नेह जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, रोहिणी मैया यह मानती है कि हमारे से भी यशोदा मैया के हृदय में बलराम के प्रति भी स्नेह अत्यधिक है। हे पुत्र इति तस्मिन्नपि पुत्रवत् स्नेहात् अनुकंपायाम कन। तो पुत्र शब्द से हे पुत्र और हे पुत्र का, ये दोनों में पार्थक्य क्या है? यहाँ अनुकंपायाम कन, अनुकंपा अर्थ में कन, अर्थात जिसके प्रति अत्यधिक अनुकंपा हो, अर्थात जिसकी सुरक्षा की चिंता या हर तरह से जिसकी चिंता अत्यधिक हो, जिसके कुशल की कामना सब समय बनी रहे, वह अनुकंपित होता है। वह अनुकंपायाम अर्थात दयायाम, दयायाम अर्थात जिसकी चिंता बार बार मैया कर रही हो तो उसके प्रति अनुकंपा होती है। कोई उम्र में या अधिकार में बड़ा व्यक्ति, वो जिसकी चिंता ज़्यादा करता है, जिस अधस्तन व्यक्ति की चिंता ज़्यादा करता है, उसके प्रति उसको अनुकंपा समझना चाहिए। तो मैया बड़ी हैं, यशोदा मैया तो जननी हैं, इसलिए भगवान बलराम के प्रति उनकी अनुकंपा है, उनकी दया है, उनकी चिंता सबसे मैया को बनी रहती है। इसलिए हे पुत्र का यहाँ अनुकंपा अर्थ में का प्रत्यय है। कृष्ण हे रामागच्छतातासु सानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहार स्तद्भवान् भोक्तुमर्हति। तो इस तरह से मैया बुला रही है। पहले रोहिणी मैया गई थी बुलाने के लिए, वो सफल नहीं हुई। यशोदा मैया जाकर के
कोशिश कर रही है, बुला रही है, कई तरह की उपाय का अवलंबन कर रही है। और उसमें साम दान दंड भेद, अर्थात भगवान के चित्त में ईर्ष्या को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए और स्नेह को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ उपाय कर रही है। लेकिन जीव तो मैया तो कर रही है, हम लोग भी भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव संसार के लोग भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन यह जब तक भगवान की कृपा ना हो, चाहे जीव कितना उपाय कर लें, जब मैया उपाय कर रही है तो वो सफल नहीं हो रही है, तो क्या भरोसा है हम लोग के उपाय से भगवान प्राप्त होंगे। भगवान तो अपनी कृपा से ही प्राप्त होंगे। इस आशा के साथ भगवान को बार बार बुलाना चाहिए, भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए, हे कृष्ण बार बार उच्चारण करना चाहिए। इसी आशा के साथ भगवान की कृपा की प्राप्ति की अभिलाषा के साथ, विश्वास के साथ सभी वैष्णवों के चरण बंदन करते हुए, सभी श्रोतृवर्गों को बारंबार कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आपकी कथा की विश्रांति कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे।